So today is 13th of March, Friday 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. Today is 13th of March 2020. First is about Sensex slump. Around 3000 points, Nifty sinks to 33-month low. Then second is about avian flu confirmed at 3 places in Kerala, H1N1 and H5N1. Then third is about Maradu, delay in removal of debris to invite penal action. Then fourth is about COVID-19, वैक्सीन जो इसकी है ना वो कम से कम 2 साल दूर है अभी. Then fifth is about COVID-19, fear of mass return of workers. Then sixth है न्यू एनवायरमेंटल लॉ, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, इसमें कुछ सर्टेन चेंजेस लाने वाले हैं. Then not a time to panic. This we need to keep in mind. Then eighth is about danger ahead. This is about motor vehicle amendment, significant changes. Then ninth is about fighting COVID together for a shared future. ये लिखा है सन वाई डोंग ने, ये चाइनीज एम्बेसडर हैं टू इंडिया. Then 10th is about should distressed private banks like Yes Bank be saved by public sector banks like SBI. Then 11th is about the cost of opacity. 12th है bill on bankruptcy code and mineral law gets Rajya Sabha node. Then 13th is about social media platform to be made accountable. This is very necessary. Then 14th है Trump bans travel from Europe to USA. इसमें UK included नहीं है. Then 15th is why are oil prices crashing? Oil इतना कम क्यों हो गया? $33 बैरल पे आ गया है. Then retail inflation eases to 6.58%. Industrial production quickens. Then 17th is about RBI opens dollar swap window. 18th है CAD current account deficit narrows to 0.2% of GDP in third quarter. Then 19th is about Bhoot Julika, ये क्या है? Ghost pepper है, chili. Then 20th is about the Olympic flame is lit. So today we are going to read about all these 20 topics and some more in next 20 to 25 minutes. So let us start. First, Sensex slumps 2,919 points, Nifty sinks to 33-month low. See, ये biggest single day fall है. WHO ने कोरोना वायरस को ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है, तो बियर फेज आ गया है. बियर क्या करता है? सेंसेक्स को नीचे गिराता है. बियर भालू ऐसे नीचे खींचता है, और जो बुल होता है बुल रनिंग करता है, तो सेंसेक्स बुलिश है मतलब सेंसेक्स ऊपर जा रहा है. सो बियर फेज मीन्स फॉल, बुल फेज मीन्स राइज और रन. सो अभी बियर फेज है. देन अभी फ्राइडे तो हमने इंक्लूड नहीं किया है. आज जो फ्राइडे था इधर सर्किट ब्रेकर टच हो गया था. सर्किट ब्रेकर कब लगता है? जब प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं इन परसेंटेज, ऑटोमेटिक चेक आ जाता है जब अचानक बहुत ज़्यादा फॉल हुआ है. तो कुछ देर के लिए जो ट्रेड होता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसको रोक दिया जाता है. तो ये सर्किट ब्रेकर आज अचीव हुआ था. रिटेल इन्फ्लेशन मीनवाइल ईजेस टू 6.58% विच इज़ अ गुड साइन. देन IIP में भी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्विकन टू 2%. मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर है वहाँ पे भी अभी सबड्यूड परफॉर्मेंस है. सो दिस इज़ पेज नंबर 1. देन यहाँ पे पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2 है. देन दिस इज़ पेज नंबर 3. यहाँ पे अटेंशन है. इन्फ्लेमेटरी मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप कैन लैंड यू इन जेल फॉर 3 years. If any individual shares or forward messages or videos on WhatsApp or any social media platform which are inflammatory in nature or incites communal tension, then the guilty will have to serve jail term up to 3 years. Then this is page number 5. COVID-19 declared as epidemic in Haryana too. Then this is page number 7. यहाँ again advertisement है. This is an advertisement advisory, general advisory for public related to this COVID-19. COVID-19 डिसीज़ का नाम है, वायरस का नाम डिफरेंट है. नाउ दिस इज़ एवियन फ्लू कन्फर्म्ड एट 3 places इन केरला. केरला में अभी एवियन फ्लू का भी डेंजर आ गया है. सी, सस्पेक्टेड केसेस मिले हैं एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब बर्ड फ्लू के. बर्ड फ्लू जो है ना वो है सब टाइप H5N1 और जो स्वाइन फ्लू है वो है H1N1. कोविड-19 अगेन डिसीज़ है. वायरस का नाम क्या है? सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिलेटेड कोव-2. सो दिस इज़ द नेम ऑफ वायरस. यहाँ पे बर्ड्स को जब भी ये होता है ना तो मास कलिंग होती है. कलिंग मतलब सिस्टमेटिकली उन बर्ड्स को
किल किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है ताकि हम वायरस को कंटेन कर सकें. सो कलिंग हो रही है, सिस्टमेटिकली किल करेंगे. मीनवाइल लंपी स्किन डिसीजेस कॉज्ड बाय दिस कैप्री पॉक्स वायरस, ये कहाँ पे हो रहा है, ये उन कैटल्स को हो रहा है इन केरला, और इससे मिल्क प्रोडक्शन भी काफ़ी लो हो गया है. देन दिस इज़ मराडू. मराडू अभी न्यूज़ में हमने देखा था ना, मराडू में कोस्टल रेगुलेशन जोन का वायलेशन हुआ था, तो मराडू में ये जो पूरी बिल्डिंग थी इसको डिमोलिश कर दिया गया. बट डिमोलिश तो हो गया, वॉट अबाउट दिस डेब्री. सो बिल्डिंग डिमोलिश्ड, डेब्री रिमूवल. तो एनजीटी ने अभी सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है, डिले इन रिमूवल ऑफ स्टील एंड कॉन्क्रीट वेस्ट. सो दिस इज पेज नंबर 8. देन दिस इज पेज नंबर 9. कोविड-19 वैक्सीन एटलीस्ट 2 years अवे. आईसीएमआर में ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, इसने कहा है कि वायरस को आइसोलेट कर दिया गया है, अब इसका हम क्लिनिकल ट्रायल्स लेंगे, अप्रूवल्स होगा, तो इस पूरी प्रोसेस में एटलीस्ट 2 years लग जाएंगे इसकी वैक्सीन लाने में. मीनवाइल ये जो वायरस है, वायरस लिविंग भी होता है, डेड भी होता है. तो लिविंग होता है, उसके फीचर्स ये हैं कि ये म्यूटेशन कर रहा है, मतलब ये भी वायरस भी इतना स्मार्ट हो गया है कि ये अपने आप को चेंज कर रहा है. सो दिस इज़ व्हाट आर द फाइंडिंग्स ऑफ दिस आईसीएमआर ऑफिशियल, साइंटिस्ट ऑफ आईसीएमआर ऑफिशियल. नाउ दिस इज fifth one. Fifth one is about COVID-19 triggers fear of mass return of workers. See, माइग्रेशन दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन. तो इंटरनेशनल माइग्रेशन में तो हमने चेक्स लगा दिए एयरपोर्ट्स में, वीज़ाज भी हमने सस्पेंड कर दिए. बट दूसरे होते हैं डोमेस्टिक माइग्रेशन. डोमेस्टिक माइग्रेशन मीन्स वर्कर्स अपने घर जा रहे हैं, लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली में बहुत सारे वर्कर्स आते हैं. दे रिटर्न टू देयर होमलैंड इन बिहार, झारखंड और दिस ओडिशा. तो यहाँ से अगर कोई वायरस इन्होंने कैरी कर लिया और ये अगर इनके हिंटरलैंड में यहाँ चला गया तो इट वुड बिकम अ नाइटमेयर. ओडिशा में एक है लिंक वर्कर्स स्कीम, गंजम डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ के ऑफिशियल्स ने इसके फियर यहाँ पे रेज किए हैं. नाउ दिस इज़ न्यू एनवायरमेंटल लॉ कट्स टाइम फॉर हियरिंग. सी, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, मशीन्स एंड कंपनीज फैक्ट्रीज बना रही है, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट ज़रूरी हो जाता है. सो गवर्न्स हाउ द थ्रेट posed by large infrastructure projects to the environment ought to be evaluated. आपको evaluation करना पड़ेगा कि आप ये प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो इस प्रोजेक्ट से कितना डैमेज हो रहा है एनवायरनमेंट का. सो टाइम इज़ एवरीथिंग. इसमें क्या होता है, टाइम बहुत लग जाता है, तो टू सेव टाइम इसको हम पूरे अप्रूवल प्रोसेस को मिनिमाइज कर रहे हैं, मिनिमम द डे दे. तो पीपल टू रेस्पॉन्ड 60 to 30 हो जाएंगे. मिनिमम डेज जो हैं वो लोगों से एक बार प्रपोजल आता है, पब्लिक में आता है, फिर पीपल उसमें अपने फीडबैक देते हैं, तो वो फीडबैक 60 to 30 कर रहे हैं. पब्लिक हियरिंग जो है वो 45 to 40 डेज हो जाएगी, तो 5 दिन ये बच गए. देन ऑर्गेनाइजेशन, नेचर, नीड, रेमेडियल मेजर, ये सारे जो भी प्रोजेक्ट लगा रहा है उसको ये अंडरस्टैंड और स्टडी करना पड़ता है. फिर वो डिसीजन जाता है एमओईएफ में, एमओईएफ फिर उसे अप्रूवल देता है. तो द होल आइडिया इज़ इस पूरे प्रोसेस को स्पीड अप करो. नाउ दिस इज़ द एडिटोरियल सेक्शन. नॉट अ टाइम टू पैनिक. सी, वायरस 116 कंट्री में जा चुका है, 4000 से ज़्यादा डेथ हो गई है. दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग. देन SARS-CoV-2 पैंडेमिक WHO ने अभी हाल ही में डिक्लेयर कर दिया. 30 जनवरी को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न भी डिक्लेयर हुआ था. सी, इस तरीके से ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता जा रहा है और ग्रेजुअली हम इसका असेसमेंट कर रहे हैं. नाउ नंबर ऑफ केसेस अभी थोड़ा प्लेटू हो रहा है चाइना में, बट वर्ल्ड में अभी भी केसेस, नंबर ऑफ केसेस राइज हैं, स्पेशली इन इटली, ईरान एट्सेट्रा. The idea is not to create panic. Aggressive action in viral containment. Containment is the key. So take warning seriously. ट्रेस करना है, डिटेक्ट करना है, आइसोलेट करना है एंड देन ट्रीट करना है. दिस शुड बी द स्टेप्स. देन इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. हमारा जो हेल्थ केयर है, इमेजिन जैसे अपने वर्कर्स का देखा ना, अब ये वर्कर्स मूव कर रहे हैं हिंटरलैंड में, तो वहाँ हेल्थ केयर कितना स्ट्रॉन्ग तो होगा नहीं वहाँ पे. तो इमेजिन कितना ज़्यादा मास स्केल में यहाँ वो डैमेज कर सकता है वायरस. सो दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नेसेसरी टू contain it. Meanwhile, if you get infected with this COVID-19, then there is nothing to worry. You just have to come out and tell the authorities this virus, there is nothing to worry. Many significant people all over the world we can see in news, उनको ये वायरस हुआ है, they are openly coming out. बट अगर आप हाइड करोगे ना तो उससे क्या होगा, ये और ज़्यादा स्प्रेड होगा. आपके फैमिली, नियर एंड डियर वंस, उनको भी ये हो सकता है. सो दैट इज़ वाई देयर इज़ नथिंग टू हाइड. देन दिस इज़ डेंजर अहेड. टेरेबल रिकॉर्ड है इंडिया का रोड सेफ्टी में. रोड सेफ्टी को तो हम ध्यान देते ही नहीं है. वोटर व्हीकल एक्ट आया था, मोटर व्हीकल एक्ट, इसके अमेंडमेंट, इसमें बहुत रेडिकल चेंजेस किए थे, सिग्निफिकेंट चेंजेस किए थे. तो ऑन पेपर डेथ टोल तो रिड्यूस हुआ है, रैपिडली मोटराइजिंग कंट्री है हमारी, बट जो डिक्लाइन इन डेटा है वो ट्रू पिक्चर नहीं बता रहा है. कल्चर ऑफ इनडिफरेंस है, अपैथी है,
टोकन मेजर्स हम ले रहे हैं. सो दैट इज़ वाई हमें बिहेवियरल चेंज लाने हैं, साथ ही साथ गुड इंजीनियरिंग, साउंड एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, टेक्नोलॉजी अपग्रेड. वी नीड टू मेक अवर रोड्स एंड ट्रैवल सेफर. वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है डिलीवरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया, इसने भी काफ़ी यहाँ पे सीरियस कंसर्न्स उठाए हैं इसके बारे में, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल. सो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें इम्प्रूव करना है, जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, प्रोफेशनल एंड एम्पावर्ड मशीनरी होनी चाहिए. एक यहाँ पे बात किया है डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी, ये 1988 में बन गई थी बट ऑब्सक्योर रिडंडेंट पड़ी हुई थी, इसको रिवाइवल करना अब टाइम आ गया है. डैशबोर्ड कैमरा जो सामने विंड स्क्रीन में लग जाते हैं, डैशबोर्ड कैमरा ये मैंडेटरी कर देना चाहिए और इसको वीडियो एविडेंस की तरह एक्सेप्ट भी करना चाहिए. इससे क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन ईजी हो जाएगा. मैनी ए टाइम जो मोटरिस्ट होता है वो गलती पे नहीं होता है, तो ये इस टाइप के जो डैशबोर्ड कैमरा होते हैं ना वो उसको सेव कर सकते हैं. एनफोर्समेंट एजेंसी का भी हेल्प करेंगे. देन गोल्डन आवर होता है एक्सीडेंट के तुरंत बाद का टाइम, तो ये टाइम भी ज़रूरी है कि हम गुड समार्टियंस जो हैं उनको भी प्रोटेक्ट करें और ये टाइम हम वेस्ट नहीं करें. गोल्डन आवर, क्वालिटी ट्रॉमा सेंटर्स होने चाहिए, कैशलेस फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए. सो आवर क्वेस्ट शुड बी टू सेव लाइफ एंड लिम्स. नाउ दिस इज़ फाइटिंग कोविड टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर. ये आर्टिकल लिखा है सुन वाई डोंग ने. Who is he? He is Chinese ambassador to India. He has mentioned कि चाइना का एक हिस्ट्री रहा है, they cope up with all type of these epidemics and all. क्लोज कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है. चाइना एक रेजिलिएंट कंट्री है, दिस इज़ व्हाट ही इज़ टेलिंग. इंडिया एंड चाइना में म्यूचुअल सपोर्ट की ज़रूरत है, लाइक मेडिसिन, वैक्सीन सपोर्ट. वी नीड टू रीच आउट इम्पैक्ट ऑन चाइनाज इकोनॉमी एंड ग्लोबल कोऑपरेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देन दिस इज़ लेटर्स टू द एडिटर. यहाँ लिखा है कि शुड डिस्ट्रेस्ड प्राइवेट बैंक बी सेव्ड बाय पीएसबी. जैसे यस बैंक है, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बट इसको सेव करने के लिए हमने एसबीआई को बोला कि इसमें 49% स्टेक अप लो. सो गवर्नमेंट फेसिंग सीवियर फिजिकल कंस्ट्रेन. यस बैंक को मोरेटोरियम में रखा, 49% एसबीआई ने लिया. प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन नहीं लाए हम, ये किक इन होना चाहिए था बट ये नहीं हुआ. आइडियली ये जो ऐसे फेलियर्स होते हैं वो बैंक और मार्केट लेड करेक्शन से ठीक हो जाने चाहिए. ये जो पीएसबी आके इसे बचा रही है, सरकार आके इसे सेफगार्ड कर रही है, दिस शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट. इट इज़ नीदर प्लीजेंट नॉर एलिगेंट. ग्लोबल क्राइसिस जब 2008 हुआ था तो हमने ये लेसन सीखा था, टू बिग टू फेल बैंक्स को अवॉइड करना है. लेमन ब्रदर जब फेल हुए थे. फाइनेंशियल इकोसिस्टम होता है ना, हम सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं. एक चीज़ इंपैक्ट होती है ना तो वो हर जगह रिफ्लेक्ट होने लग जाती है. सो दैट इज़ वाई रिपल इफेक्ट्स आते हैं और दैट इज़ वाई हमको सेफगार्ड करना पड़ा यस बैंक को. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बोलती है जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, इनके पास 12.7% है क्रॉस एनपीए का. ये ज़्यादा भी जा सकता है, एक्चुअल फिगर ज़्यादा भी हो सकते हैं. सो द होल आइडिया इज़, यहाँ पे ये लिखा है दिस इज़ नॉट ओवर. वाइल यस बैंक वॉज एन इमीजिएट प्रॉब्लम which obviously had to be resolved, the larger trust deficit in the financial services ecosystem remains. We need to address this issue. Now this is the cost of opacity. Again, lack of transparency and awareness that causes panic during a pandemic. So it is not data but lack of transparency and awareness that causes panic during a pandemic. So the widespread outbreak could have been avoided. हमने वुहान में देखा था ना, हुबई प्रोविंस, वहाँ पे अगर जो विसल ब्लोवर थे उनकी बात मानते डॉक्टर्स को तो उनकी जान भी नहीं जाती और इतना बड़ा पेंडेमिक नहीं आता. बट हमने अर्ली सिग्नल्स को, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को इग्नोर किया. सार्स, मर्स, H1N1, इबोला, नोवल कोरोना वायरस फैमिली के. सो इट इज़ टाइम दैट वी मेंटेन ट्रस्ट, रेस्पॉन्स अक्रॉस द वर्ल्ड, द राइट अप्रोच शुड बी फॉलोड. देन दिस इज़ पेज नंबर 12. सेंसेक्स स्लम्प्स, सेंटर जस्टिफाइज वीज़ा का भी सस्पेंशन हो गया फॉर सम टाइम. देन MEA एडवाइजेज अगेंस्ट IPL को भी बोल रहे हैं कि ये नॉन एसेंशियल ट्रैवल भी है, सबको अवॉइड करना चाहिए फॉर सम टाइम. देन एम्बेसडर डिफेंस इटलीज रेस्पॉन्स, इटली में काफ़ी ज़्यादा डेथ हुई है. देन दिस इज़ बिल्स ऑन बैंक्रप्सी कोड मिनरल लॉ गेट राज्यसभा नोट. सी, इसका नाम है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2020, ये अमेंडमेंट है. देन मिनरल्स लॉ अमेंडमेंट बिल 2020 भी पास हुआ है. क्या चेंजेस हुए इसमें, ये थर्ड टाइम चेंज हो रहा है शायद. IBC 2016 थर्ड टाइम अभी अमेंडमेंट आया है. द आइडिया इज़, जब एक कंपनी डिफ़ॉल्ट कर रही है उसको आपने दूसरों को ट्रांसफ़र किया तो उसकी जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए. तो इट रिंग फेंस सक्सेसफुल बिडर ऑफ इंसॉल्वेंट कंपनीज फ्रॉम द रिस्क ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग फॉर ऑफेंसेज कमिटेड बाय प्रीवियस प्रमोटर्स. सो दिस इज़ द थर्ड अमेंडमेंट. 980 केसेस इसमें जयराम रमेश जी ने यहाँ पे बताया है कि 980 केसेस इसमें आए जिसमें से 780 लिक्विडेट हो गई, मतलब
कुछ बहुत अच्छा इसने काम नहीं किया है. 80% मोर्टेलिटी रही है इस IBC 2016 की. दिस एक्टेड एज अ यूथेनेशिया. देन दिस इज 13. दिस इज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू बी मेड मोर अकाउंटेबल. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू सीन, जितना भी ये जो इश्यूज होते हैं ये सब सोशल मीडिया एक्ट्स लाइक अ फायर. सो इंटरमीडिएट रीस गाइडलाइन की यहाँ पे बात की है. सोशल मीडिया को अकाउंटेबल होना चाहिए. जो फेक न्यूज़ होती है, प्रोपोगेंडा बेस्ड न्यूज़ होती है, हेट स्पीच होते हैं, हाफ ट्रूथ्स होते हैं, दैट शुड बी सेट. अकाउंटेबिलिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है. तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी इंटरमीडियरीज गाइडलाइन रूल 2011, ये अमेंडमेंट आया है अभी. ड्राफ्ट आया था IT एक्ट 2018 का. ड्राफ्ट आने के बाद ये पब्लिक में रखा गया था, पब्लिक से उनके कमेंट्स पूछे थे. नाउ अब ये जो चेंजेस हैं वो ये बोल रहे हैं ओरिजिनेटर ऑफ अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन है ना, उसको ट्रेस करना ज़रूरी है कि ये सोर्स क्या है, कहाँ से ये फेक मैसेज फॉरवर्ड्स हो रहे हैं. 24 आवर्स का इसमें नोटिस पे इन्हें रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा. देन दिस इज ट्रम्प हैज़ ट्रैवल बैन लगा दिया है. ट्रम्प ने ट्रैवल बैन लगा दिया है फ्रॉम यूरोप टू USA. वाई? टू कंटेन. नाउ वाई आर ऑयल प्राइसेस क्रैशिंग. हम इसे रोज़ पढ़ रहे हैं, इसमें और डिटेल में लिखा है कि जो ऑयल प्राइसेस क्रैश हुई हैं, किसी भी की चीज़ कीमत होती है वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करती है. तो डिमांड सबड्यूड है, कम है. वाई? बिकॉज इकोनॉमी इज़ नॉट डूइंग वेल एंड कोविड-19 का थ्रेट आ गया. नाउ सप्लाई भी कम हो जाती तो प्राइस फॉल नहीं होती, बट सप्लाई कम नहीं हुई. क्यों नहीं कम हुई? बिकॉज सऊदी रशिया की डील रैटल हो गई, फेल हो गई. $33 बैरल क्रूड ऑयल आ गया. ओपेक प्लस जो है उसमें रशिया और ओपेक होता है, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़. ना जो सऊदी है ना, इन दोनों की डील में सऊदी क्या बोल रहा है? सऊदी बोल रहा है कि इट इज़ प्लेइंग काइंड ऑफ माइंड गेम. वो बोलता है फ्लड द मार्केट, देन हम एक्स्ट्रा मार्केट में ऑयल सप्लाई करेंगे लो रेट पे, तो हम मार्केट कैप्चर कर लेंगे. सप्रेस करेंगे शेल गैस जो USA का बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है इन ओपेक कंट्रीज़ के लिए. रशिया का क्या स्टैंड है कि ओपेक और US शेल गैस है, इससे हमें आगे निकलना है. सो दैट इज़ वाई इस पूरी फाइट में जो क्रूड ऑयल है, ब्रेंट क्रूड ऑयल है, उसका प्राइस फॉल हो रहा है. नाउ हियर सी, you need to come out. It's all right if somebody gets COVID. Tom Hanks' wife Rita in Australia in hospital. Trudeau wife in isolation after virus fear. Now this is about retail inflation eases to 6.58%. Industrial production quickens. See, consumer price index होता है प्राइस चेंज इन अ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है इन्फ्लेशन, इसका मेजर करते हैं अपन किससे? CPI से. तो CSO निकालता है, ये तो CPI हो गया. अब जो CSO निकालता है वो निकालता है फिगर IIPK. ये कॉम्पोजिट इंडिकेटर है ब्रॉड सेक्टर्स में. क्विकन टू स्टिमुलेटेड टू फूड प्राइस फॉल. तो फूड प्राइस फॉल हुआ, उससे हमारा क्या हुआ? जो इन्फ्लेशन था वो कम हो गया. और कंपोजिट इंडिकेटर जो IIPK थे वो भी इंक्रीज हुए हैं डिस्पाइट डैम्पन्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन सर्टेन एरिया. सी, तो ये जो हो रहे हैं ना, ये ग्रीन शूट्स हैं. सी, दीज आर ग्रीन शूट्स. राइज हो रहा है. IIP भी अब इंक्लाइन हो रहा है यहाँ पे. जनवरी जो था वो वर्स्ट फेज था हमारा. देन दिस इज सप्लाईज फ्रॉम चाइना बैक टू नॉर्मल. RBI ओपन्स डॉलर स्वैप विंडो. ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. इसमें क्या होता है? डॉलर स्वैप मतलब डॉलर का एक्सचेंज कर रहा है रुपी के साथ. RBI क्यों कर रहा है? ताकि रुपी का भी मार्केटेबिलिटी, लिक्विडिटी बनी रहे मार्केट में. सी, RBI ने 6 महीने का डॉलर सेल बाय स्वैप विंडो दिया है. मार्च 2019 में ये पहली बार ऑपरेशनल हुआ था, तब 6 बिलियन समथिंग का लिया था. नाउ दिस इज़ द सेकेंड टाइम. सो द आइडिया इज़ टू पंप लिक्विडिटी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. लिक्विडिटी लाना है. अभी सेल बाय होगा अराउंड 2 बिलियन का, मार्च 16 से स्टार्ट हो जाएगा. कैसे सेल बाय होगा? जो बैंक्स होते हैं, बैंक को RBI बोलेगा आपके पास जितने भी डॉलर रखे हैं ना वो मुझे दे दो. तो ले 70 रुपये में उन्होंने RBI ने डॉलर इनसे ले लिया. और ये अग्रीमेंट होगा कि आफ्टर सम टाइम 1 और 2-3 ईयर ये मैं आपको वापस सेल कर दूंगा फॉर से 80 रुपी. तो इससे क्या फ़ायदा हुआ बैंक को? बैंक के पास लिक्विडिटी आ गई रुपी की. रुपी लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी. और ये ऑक्शन के थ्रू होगा. जो सबसे ज़्यादा बिड करेगा उसका डॉलर RBI खरीदेगा और अपने पास रखेगा. तो इससे RBI का फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज़ हो रहा है. मल्टीपल ट्रांशेस में ये ऑक्शन रूट के थ्रू लेगा ये. देन CAD narrows to 0.2% of GDP in third quarter. सी, लोअर ट्रेड डेफिसिट है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. ट्रेड डेफिसिट मीन्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इन दोनों का डिफरेंस है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. नेट सर्विसेज रिसीट हाई है. नेट अर्निंग फ्रॉम कंप्यूटर्स, ट्रैवल, ये से हमें अर्निंग आ रही है. फाइनेंशियल सर्विसेज एट्सेट्रा. रेमिटांस था, ये भी हमें हेल्प दे रहा है. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी हमें हेल्प दे रही है. देन क्रूड ऑयल है, ये सबड्यूड है. तो इस पूरे फैक्टर से हमें करंट अकाउंट डेफिसिट में काफ़ी बेनिफिट मिला है. देन बाय 2038 इंडिया एयरक्राफ्ट फ्लीट टू क्वाड्रपल. दिस इज़ अ गुड थिंग. देन ये है शोकेज. देन दिस इज़ अगेन शोकेज. ये जो है ना, दिस इज़ कॉल्ड भूत
जोलोकिया, ये नॉर्थ ईस्ट में मिलती है और ये हॉटेस्ट पेपर है इन द वर्ल्ड, दिस भूत जोलोकिया चिली, इट्स अ चिली। देन दिस इज स्पोर्ट्स, ये है ओलंपिक फ्लेम इज लिट। सी 600 रनर्स आएंगे, 3500 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, 842 नॉटिकल माइल मतलब सी में भी जाएगी ये, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए। इसको फ्लेम ऑफ होप बोल रहे हैं। तो ये टॉर्च रिले करेगी। ग्रीस इज शेड्यूल टू पास थ्रू 37 सिटीज़, 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स, 3500 किलोमीटर, 842 नॉटिकल माइल और 600 रनर्स, ऐसे करके इसको कैरी करके आगे ले जाएंगे। सो दिस इज Olympics, 5 continents, 5 rings. So this is today's newspaper. Today we read about the Olympic flame is lit. Then Bhut Jolika, this is Chile. CAD नैरो हो रहा है हमारा, विच इज़ अ गुड थिंग। देन आरबीआई ने डॉलर स्वैप विंडो ओपन किया है अभी। देन रिटेल इन्फ्लेशन ईज हुआ है, आईआईपी भी थोड़ा बेटर हो रहा है। ऑयल प्राइसेस क्रैश क्यों हो रही हैं? ट्रंप बैन्स ट्रैवल फ्रॉम यूरोप टू यूएसए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू बी मेड अकाउंटेबल। बिल ऑन बैंक्रप्सी कोड एंड मिनरल लॉ गेट राज्यसभा नोड। द कॉस्ट ऑफ ओपेसिटी है ये। और ये क्या है? शुड डिस्ट्रेस्ड प्राइवेट बैंक्स बी सेव्ड बाय पीएसबी, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? ये जितने भी पीएसबीज हैं, हम इनको एक्सपोज तो नहीं कर रहे हैं, रिस्क में तो अननेसेसरी नहीं आ रही है यहाँ पे, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर की जो अनहेल्दी प्रैक्टिस है वो इन पीएसबी में भी आ सकती है। देन बैंक का सिस्टमेटिक डोमिनो इफेक्ट हो सकता है। फाइटिंग कोविड-19 टुगेदर फॉर अ शेयर्ड वैल्यू। देन दिस इज डेंजर अहेड, ये है नॉट अ टाइम टू पैनिक, इट इज़ टाइम टू एक्ट। न्यू इन्वायरमेंट लॉ कट्स टाइमिंग फॉर हियरिंग। दिस इज़ फियर ऑफ मास रिटर्न ऑफ वर्कर्स। कोविड-19 की वैक्सीन में अभी 2 साल लगेंगे। मराडू कोस्टल रेगुलेशन जोन। देन दिस इज एवियन इन्फ्लुएंजा एट 3 प्लेसेस इन केरला। सेंसेक्स स्लम्स 2919 पॉइंट्स, निफ्टी स्टिंक्स टू 33 month low. So this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care.